Welcome everybody. Our topic for discussion is effective marketing practices for a sustainable growth of small and medium-sized milk unions. I have the pleasure of introducing to you Mr. Amritesh Kumar. He is the head of marketing in JMF. Thank you, sir. So I'm very thankful to NDDB for giving me this kind of opportunity to talk about our Jharkhand Milk Federation, and we'll discuss. Most of the time we'll see very few slides about the activity and good practices what we have adopted. The flow of the session would be like this. Brief introduction, key activities of marketing group, what we do here in JMF, growth drivers, activities carried out during COVID-19, about Kheer Mix and other pre-COVID activities that we undertook since last 6 years in JMF. Next slide. This is the basic demographic detail of Jharkhand. As per the census 2012, the total population of Jharkhand is 3.20 crore, which is now close to 4 crore. The capital of Jharkhand is Ranchi, which contributes to around 14 lakh population, urban population. The total population is around 32 lakhs. At Jharkhand is predominantly, जो यहाँ पे जो सोच बनी हुई थी लोगों की, वो ये थी कि ये मिनरल रिच जो है यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे मिनरल एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, आयरन ओर, इंजीनियरिंग, केमिकल, पावर, हैंडलूम सेक्टर, ये सब पे ज्यादा फोकस था. ऑफ लेट व्हेन एनडीडीबी केम into being with Jharkhand government, then it was decided that there is lot many opportunity for dairying here in Jharkhand. So we have started since November 2014, which will come in next slide. Next slide, please. See how we started. In June 2013, formation of JMF and registration of Jharkhand Milk Federation happened. On March 2014, MOU signed between NDDB and Jharkhand government. Since August 2014, procurement, processing and marketing activity initiated. Kotwar plant became operational in Ranchi in February 2016. And finally, we are the cooperative who 100% the cash payment to the farmer is made through online payment only. We don't handle cash over here in our cooperative. This is the basic marketing activity what we perform here in JMF, Jharkhand Milk Federation. Business development, pouch milk sale, brand promotion, consumer awareness, brand awareness, maintaining relation with the stakeholders and media. New source of, we always try to identify the new source of revenue generation since the federation is growing, so we have to do that. Marketing information system, event and exhibition, wherever we found a mass connecting event, we try to chip in so that our brand gets promoted. Payment and credit control and its recovery. Support the government projects in terms of gift milk. We have started here with collaboration with NFN here in Jharkhand. Feedback to management, what is happening in the market. Team management, coordination among hubs. We have 3 hubs apart from Kotwar. Interdepartmental coordination, competitors analysis, planning and forecasting, and new product launch. So if you want to shine like a sun, then we have to burn like a sun. So that is the basic idea which we think, and we are progressing on it. So the first event what happened in JMF, which is a big event, that is brand relaunch. Initially, our brand has a very old kind of perception. The pronunciation of Medha was Megha. Most of the people could not pronounce it properly because the diction and the thing is written in that kind of design. Communication was not very clear. So we thought, the management thought that we need to relaunch our brand in order to become with a fresh energy and new things
coming into, because the competition is increasing, so we have definitely we need to change as per the competition. We need to portray our brand as young as possible, because it's only a 6 years brand. That time it was only 4-year brand. So what we did, we changed the logo. Initially what we used to do, we used to share our brand with Mother Dairy. Mother Dairy name was carried with Medha brand in our pouch milk, because our brand was new, so it will help us to establish our brand in the market, because Mother Dairy has already, it's a renowned brand. So initially we carried the name of Mother Dairy, so it was called Mother Dairy Medha. Then at a certain level, when we thought our sale has came to a particular level and we need to expand, so we have hived off the logo, Mother Dairy's logo, and we redesigned our logo, Medha logo. So packaging design was changed, communication from Megha to Medha is changed. The brand looks more energetic, more fresh, and it's basically a newborn baby, 2 years born baby, because the brand name has changed. So complete makeover was there. The tagline was changed. It is changed to Tajgi Jharkhand ki. और result आपके सामने है. We grow by 30% while completing that financial year. So it was quite encouraging. Now we'll focus on consumer awareness, because whenever we are coming new to the market, the main problem was how we communicate, how are we creating awareness so that our brand should sell in the market. तो consumer awareness पे हमने एक विशेष slide बनाया so that कि हम लोग जो इस पे बात कर सकें. Consumer awareness में, if you are going by the books, then it is a big topic. But what we did, the practically over here, हम उसी पे फोकस करना चाहते हैं. पहला तो है प्लांट विजिट. प्लांट विजिट में हमने क्या किया है, प्लांट विजिट में स्कूल स्टूडेंट्स, कुड यू कम टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. प्लांट विजिट में हमने क्या किया है, स्कूल स्टूडेंट्स को हम बुलाते हैं, यहाँ पे प्लांट की प्रोसेसिंग बताते हैं, सारा कुछ समझाते हैं, सो दैट उनकी पर्सपेक्टिव चेंज हो, उनके आइडियाज चेंज हो, वो समझे कि मिल्क कैसे बनता है, कैसे प्रोसेस होता है, और कैसे ये जो है उनके घरों तक पहुंचता है. उसके बाद फिर मेडिकल इंटर्न्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसर हमारे किसान भाई बहन जो है, उनको हम लोग यहाँ पे लाके उनको बताते हैं कि इस तरह से हम प्रोसेस करते हैं, ये सारे जो सिस्टम है इस तरह से चलती है. तो उनका एक अलग से एक आउटलुक तैयार होता है, अलग से एक पर्सपेक्टिव तैयार होता है. बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं कि उनका जो पैसा, उनका जो दूध जहाँ पे आ रहा है वो काफी सेफ हैंड में है और काफी अच्छे तरीके से जो है उसको मैनेज किया जा रहा है. तो ये है. इसके अलावा हम लोग जो है प्लांट विजिट में सोशल इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाते हैं, बिकॉज एक नॉर्मल पब्लिक के पास तो हम पहुंच ही रहे हैं डिफरेंट वेज एंड मीन्स से, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर ग्रुप को इंक्लूड करने से होता है क्या कि वो अपने पेयर ग्रुप में जो है इसको शेयर करते हैं. देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर lot many IAS officers, lot many good dignitaries, they have heard about Medha, but they are not sure. They were not sure कि किस तरह का प्लांट होगा. ये मतलब नॉर्मल कोई दूसरा सरकारी प्लांट होगा जहाँ पे काफी कचरे होंगे, काफी मतलब अनऑर्गेनाइज सा होगा, लोग जो है हाइजीनिक ज्यादा नहीं होंगे. बट व्हेन दे विजिटेड आवर प्लांट, इट वाज आई ओपनर फॉर देम. उन्होंने कहा कि इस तरह से बहुत सारे प्राइवेट डेयरीज भी जो है अपनी रख रखाव नहीं कर पाते हैं, इस तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं जिस तरह से आप कर पाए हैं. सो पर्सपेक्टिव चेंजेस 360 डिग्री. तो प्लांट विजिट जो है एक रियल टाइम जो है रियल चेक जो है रियलिटी चेक देने के लिए जो है हम अपने कंज्यूमर्स को बुलाते हैं यहाँ पे. उसके अलावा एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, डिफरेंट ओकेजन्स पे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज अब जो है कंपटीशन का जमाना है तो हम जो है पीछे नहीं रह सकते. उससे हमें अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना ही पड़ेगा थ्रू डिफरेंट मोड्स. तो एडवर्टीजमेंट से हम प्रमोट करते हैं. न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हो गया, वॉल पेंटिंग हो गया, FM रेडियो चैनल हो गए, ऑनलाइन डिजिटल फेसबुक हम लोग खुद ही मैनेज करते हैं. इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं जब बजट हमारा अलाउ करता, बिकॉज इट्स अ न्यू फेडरेशन. उसके बाद फिर जो है किसी भी गुड रीजंस के लिए हम लोग न्यूज में प्रेजेंट रहने की कोशिश जरूर करते हैं, सो दैट एक रेगुलर हैमरिंग से होता है क्या है कि टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल जो है एक ऑडियंस का, एक कंज्यूमर का, एक कस्टमर का बना रहता है. तो मेधा जो है कभी उनके दिमाग से हट नहीं सकता. इसलिए रेगुलर जो है एक हैमरिंग, एक रेगुलर कोशिश हमारी रहती है कि हम जो है इसमें बने रहें. न्यू प्रोडक्ट लॉन्च जब भी हम करते हैं तो
एक फोकस्ड वे में उसको हम लोग प्रमोट करते हैं। एक फोकस्ड अप्रोच होता है, ट्रायल परचेज, फ्री सैम्पलिंग इन आवर एग्जिस्टिंग कंज्यूमर बेस। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है उनको हम पैम्पर करें, उनको बताएं, उनको प्रोसेस में एंगेज करें। लाइक अभी हमने खीर मिक्स लॉन्च किया था। खीर मिक्स लॉन्च करने के समय हमने क्या किया था कि जितने भी टी वेंडर्स थे हमारे, एक पर्टिकुलर सोसाइटी को, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी को हमने चूज किया। वहां पे टी वेंडर्स को हमने कन्विंस किया कि भैया तुम चाय तो बेच ही रहे हो, साथ में आप हमारे खीर मिक्स को बेचो, ये भी 2 मिनट में बिक जाएगा, और उसको उसका प्रॉफिट समझाया। तो उन्होंने वहां पे बनाया, और हमने कस्टमर्स को, जो भी मॉर्निंग वॉकर्स थे, हमारे यहाँ एक मोराबादी ग्राउंड है जो कि काफी सॉर्ट आफ्टर ग्राउंड है, तो वहां पे जितने मॉर्निंग वॉकर्स थे उनको वहां पे बुलाया, वो आए और टेस्ट किया, दे हैव अप्रिशिएटेड, वी हैव एंगेज्ड देम इन टोटल प्रोसेस। और उस हिसाब से जो है खीर मिक्स आज के समय में हमारा अच्छा बिक रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने न्यू प्रोडक्ट का जो है लॉन्च किया, और उसके बाद की एक्टिविटीज जो है हम लोगों ने चालू किया था। टाइमली रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस जो है कंज्यूमर के भी हो सकते हैं, कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट, वो हमारा थंब रूल है। हमारे चैनल पार्टनर्स के भी होते हैं ग्रीवांसेस। तो हम सभी को जो है गुड फेथ में लेके, एक अच्छे इन्वायरमेंट में लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और टाइम बाउंड उसको की कोशिश करते हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हमारा रहा है अभी तक का जो अपना कंज्यूमर कंपटीशन अमंग कंज्यूमर्स के अगर अंदर में अगर हम कंपटीशन करवाते हैं, उससे प्लस पॉइंट ये होता है कि वो एंगेज, और ये जो एक्सपीरियंस जो हम लोग दे रहे हैं, नाउ वी आर सेइंग दैट यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इज गॉन, दीज आर ओल्ड स्टोरीज, नाउ इट्स यूनिक फीलिंग प्रोपोजिशन, taking it, while testing it, और while purchasing it in the market। तो एक फील जो उनके पास रहता है, जो फीलिंग वो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में एंगेज होके उनके पास आती है, वो बहुत दिनों तक याद रहती है, और वो बहुत सारे अपने पीयर ग्रुप में उसको शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होता है, और हमारी ब्रांड जो है उनके सोसाइटीज में, उनके कम्युनिटी में वहां पे प्रमोट होते रहती है, जो हमें पता भी नहीं चलता, और रातों रात जो है ब्रांड एक बड़े उस शेप में आ जाता है, बड़े शेप में आ जाता है। इस तरह से हम लोग ड्राइंग कंपटीशन हो गया, हेल्दी बेबी शो हो गई, कुकरी कंपटीशन, सोसाइटी के अंदर जाके एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, उनसे मिलके हमने वहां पे म्यूजिकल चेयर करवा दिया, 3-4 इवेंट के उनकी लिस्ट दे दी, म्यूजिकल चेयर करवा दिया, और जो भी जीते उनको मेधा का गिफ्ट हैम्पर दे दिया। तो इस तरह से एक छोटी छोटी चीजें करने से जो है काफी सारा कंज्यूमर अवेयरनेस हमें पास आती है। तो दूसरा लास्ट जो है मैक्स विजिबिलिटी ऑन ग्राउंड विजिबिलिटी, जिसमें आपके शॉप्स आते हैं, आप अगर बेच रहे हो मेधा के प्रोडक्ट, तो आपके शॉप आइडेंटिफायर होने चाहिए, हमें पता चलना चाहिए, कंज्यूमर को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे मेधा बिकता है। इसके अलावा जहाँ पे भी मार्केट प्लेस में आप घूम रहे हैं, छोटे से कॉस्ट, जैसे वॉल पेंटिंग है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर नहीं करता, बट यू कैन गेन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सी, वी से इट इन शॉर्ट OTS। जितने ज्यादा आई बॉल्स गिरेंगे उस पे, उतना ज्यादा आपका अवेयरनेस जो है वहां पे लोग नोटिस करेंगे और फैलेगा। सोशल मीडियाज हो गए, वहां से हम प्रमोट करते हैं, पोस्टर्स हैं, डैंगलर्स हैं शॉप में, वहां से हम लोग प्रमोट करते हैं। तो ये कंज्यूमर अवेयरनेस की ये सारी जो चीजें हमने बताई है, हमने खुद प्रैक्टिस किया है, और आगे भी नए मार्केट में हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, और इससे हमें ज्यादातर 80% पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला है। तो दिस इज वन ऑफ देम। नाउ ग्रोथ ड्राइवर्स, व्हाट वेर द ग्रोथ ड्राइवर्स एंड व्हाट आर द ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ मेधा। सबसे पहला जो मिथ है, ये मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, इस मार्केट में हम जाए न जाए, बीइंग अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, ये सारे मिथ है। मार्केट जो है सभी चीज को एब्जॉर्ब करती है, मार्केट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, सो वी नीड नॉट टू फियर कि यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा। हमने बहुत सारे जो है हमारे जो है प्रैक्टिसेस जो है वो फेल हुए हैं, लेकिन हाँ 10 में से 4 फेल हुए तो 6 सक्सेस भी हुआ है। और आज के डेट में यही फेलियर एंड सक्सेस को मिलाते हुए जब रेट ऑफ सक्सेस हमारे ज्यादा होगा, तो आज GMF जो एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टैब्लिश हुआ है। शुरुआत में हम जो है 3rd एंट्रेंट थे इस मार्केट में, आज के डेट में वी आर स्ट्रॉन्ग नंबर 2 एंड वी डू लॉट मेनी एक्टिविटीज, लॉट मेनी थिंग्स इन कंपैरिजन टू नंबर 1 प्लेयर इन दिस मार्केट। तो पहला तो ये हो गया, मार्केट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग। सेकंड, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, प्योर इज गोल्ड। क्वालिटी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हमने कोशिश किया है यहाँ पे कंसिस्टेंट क्वालिटी देने का,
जिससे होता है कि एक टेस्ट बड जब डेवलप होता है तो उस टेस्ट बड में कंसिस्टेंट क्वालिटी जब तक आप नहीं देंगे तब तक वो टेस्ट बड, वो हैबिट क्रिएट नहीं होता है। आज की डेट में हमारे जो अर्स्टवाइल कॉम्पिटिटर है जो नंबर 1 पे है, 40 साल से ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक टेस्ट बड, एक हैबिट उनका डेवलप हो चुका है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो वो एक कंसिस्टेंट क्वालिटी उन्होंने मेंटेन किया, उस हिसाब से उस समय कंपटीशन भी कम थे। लेकिन आज के समय में लोग ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं। कोविड के बाद तो और सेल्स एंड मार्केटिंग का डायनामिक्स ही चेंज हो गया, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। तो हाइजीन एंड हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखते हुए, पैकेजिंग को प्रायोरिटी पे रखते हुए, उसके बाद फिर जो है वो बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो एक कंसिस्टेंट क्वालिटी हमने देने की कोशिश की है। रीच मोर, गेन मोर। जितना ज्यादा आपका रिटेल में एक्सपेंशन होगा, जितना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, उतना ज्यादा आप गेन करेंगे। शुरुआत में ये परिस्थिति थी कि हमें कहाँ जाके बेचना है हमें पता नहीं होता था। मैक्सिमम रिटेल आउटलेट्स जो है हमें रोड के अगल बगल मिलते थे। कुछ जो सेकंड प्लेयर थे, बचे हुए नेक्स्ट लेवल के जो है रिटेल आउटलेट्स, वो उनके पास चले गए। जब हम थर्ड प्लेयर मार्केट में आए तो फिर हम लोगों ने इंटीरियर एरिया से शुरू किया, जहां पे गांव में सिटी के जो टर्शियरी मार्केट होते हैं वहां पे बहुत सारे शॉप्स नहीं थे, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रेश मिल्क, तो वो रास्ते रोड पे आके फिर वहां से लेके जाते थे। तो हम लोगों ने वहां से शुरू किया और आज की डेट में ये सिचुएशन है, वी आर एट ए पोजीशन कि हम कह सकते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग नंबर 2 प्लेयर है और आज के डेट में हमारा 22% का मार्केट शेयर है। थर्ड, वैल्यू फॉर मनी एंड गुड सर्विसेज। वैल्यू फॉर मनी, चूंकि हम मास प्रोडक्ट बनाते हैं, मास मार्केट में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो हमें जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं मैक्सिमम हम ये कोशिश करते हैं कि पहले तो हम कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए, वैल्यू फॉर मनी दे कस्टमर को। उसके बाद सेकंड चीज है, चूंकि मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव है तो वी कैन नॉट डिनाई ऑन द सर्विस पार्ट, वी हैव टू बी वेरी एक्टिव इन द मार्केट 24/7, वॉट एवर थिंग कम्स टू अस वी हैव टू बी वेरी फास्ट इन डिलीवरिंग दैट। तो गुड सर्विसेज है। थर्ड, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, नेचुरल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है फेडरेशन को, जो कि है कि हमारा प्रोक्योरमेंट लोकल है। वी आर द ओनली प्लेयर इन दिस मार्केट, the top 3 players who are operating in a big scale. We are only player in the market who are providing fresh milk, the freshest milk available or freshest product available in the market. तो वो हमारा एक competitive advantage है which cannot be beaten by anybody. तो हम इसको enjoy कर रहे हैं, but yeah, the competitive advantage does not last for long. तो हमें उस हिसाब से जो है बाकी की चीजें भी जो है हमें अब दुरुस्त करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। तो जो हम लोग कर रहे हैं, नॉलेज इज पावर। जिस मार्केट में भी आप जा रहे हैं आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप किसी मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहां पे आपको पता होना चाहिए आप क्या बेच रहे हैं। आप दही बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं, क्यों परचेज करेंगे वो कंज्यूमर, आपके दही में ऐसा क्या है, वो हो गया एक चीज। दूसरा है कि आपको मार्केट के बारे में आइडिया होना चाहिए, मार्केट में प्राइसिंग किस तरह की चल रही है, डिस्काउंटिंग किस तरह की चल रही है, इंसेंटिव चल रही है नहीं चल रही है, वो सब सारे चीजों को जो है डिस्कस करना चाहिए अपने टीम मेंबर्स में। और उस हिसाब से हर रोज एक नई स्ट्रेटेजी पे काम करनी चाहिए, हर रोज एक नई स्ट्रेटेजी पे जो है मार्केट में नई एनर्जी के साथ जो है मूव करते हैं। डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो बी ए कॉमरेड, हम लोग एडजॉइनिंग मार्केट जहां नजदीक के मार्केट है वहां से हम लोग को धीरे धीरे अपने मार्केट को एक्सपैंड करना चाहिए, डिस्क्रीट वे में नहीं। एक बार जो है हम दूसरे बार में धन्यवाद कर लिए, तीसरे बार में मतलब गैप्स नहीं होने चाहिए मार्केट में, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन को काफी कॉस्ट जो है इम्प्लीकेशंस आते हैं उसमें। तो बगल के मार्केट में अगर हम लोग ग्रो करते चले जाते हैं तो कम कॉस्ट में हम काफी ज्यादा जो है डिलीवर कर सकते हैं, तो पर लीटर कॉस्ट हमारा कम आता है। यू आर एज गुड एज योर टीम इज। तो सबसे पहले जब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो अच्छे लोगों को पकड़ चुन के लाना चाहिए। अच्छे आपके सेल्स के एग्जीक्यूटिव हो, स्टाफ हो, जुझारू हो, हिम्मती हो, जो कि मार्केट में डट सके, कंपटीशन से लड़ सके। और वैसे ही आपके फाइनेंशियल मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि पैसा लगाएंगे मार्केट में, वो भी अच्छे होने चाहिए। देन ओनली, क्योंकि छोटी डेयरी में होता क्या है कि नॉर्मली बहुत अच्छी पार्टी जो है पैसा लगाना चाहती नहीं है, बिकॉज उनको पता नहीं रहता फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा, आज है कल चला जाएगा, परसों डूब जाएगा। तो बड़ा ही कॉशियसली शुरू में भी हम लोगों को इस तरह की दिक्कत आई थी, हम हाथ जोड़ के जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने मार्केट में, और वहां से एक आध डिस्ट्रीब्यूटर लेके आते थे और बोलते थे भैया आप हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। लेकिन आज के डेट में वो टोटली टर्न अराउंड हो गया। आज के डेट में हमारे पास अच्छे पार्टीज आते हैं, हम उनको अपने टीम में जगह देते हैं और उनसे हम लोग काम करवा रहे हैं, जिसके कारण आज जो है हमें ग्रोथ मिल रहा है। तो यू आर एज गुड एज योर टीम इज। बी ए प्राइम कॉम्पिटिटर। अपने आप को कभी भी
अपने इंपॉर्टेंस को गिराना नहीं चाहिए। अगर हम 2 नंबर पे ही हैं तो 2 नंबर पे स्ट्रॉन्ग नंबर 2 है। गेट नोटिस इन द मार्केट, रेगुलर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहो, रेगुलर कुछ ना कुछ ट्रायल परचेज करते रहते हैं हम लोग, कुछ कियोस्क एक्टिविटी करते हैं, कहीं पे फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं, कहीं सोसाइटी की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो रेगुलरली कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हम नोटिस होते रहते हैं मार्केट में। इससे होता है क्या कि मार्केट का परसेप्शन, जो कंज्यूमर्स हैं उनका परसेप्शन जो चेंज होता रहता है और वो कहते हैं कि नहीं ये हमेशा लगा हुआ रहता है, इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, उनका परसेप्शन पॉजिटिव वे में जो है मतलब कंसोलिडेट होता है। एंड हाउ इज द जोश, इफ यू से हाउ इज द जोश तो एवरीबॉडी से हाई सर। इस तरह की टीम होनी चाहिए आपके पास, हाईली मोटिवेटेड, हाईली कमिटेड। कोविड के समय में मेरे कोई से भी टीम मेंबर्स ने मार्केटिंग में एक दिन का छुट्टी नहीं लिया, दे वर इन द मार्केट 24/7। बहुत बार ऐसी परिस्थिति हुई कि रात को 8 बजे कहीं पे दूध की जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी भेजी, डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार किया, वहां पे गाड़ी भेजा। एवरी सोसाइटी जितने भी थे यहाँ पे हम लोग के साथ उनको अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, जो कि हमने उस समय काम किया था वहां पे। उसके बाद टेक एन इन्फॉर्म अबाउट योर, टॉक एंड इन्फॉर्म अबाउट योर ब्रांड। अपने ब्रांड के बारे में मार्केट में जहां पे जाए बातें करें, जो भी आपके मीडिया व्हीकल्स है उनसे बातें करें, वहां पे आप अपनी स्टोरीज जो होती है, कोई जरूरी नहीं कि मार्केटिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग के अलावा भी कुछ अच्छे गुड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं जो हमारे प्रोड्यूसर लेवल पे हो रहे हैं, उसके बारे में बातें करें, उनके बारे में समझाएं और न्यूज़पेपर में या फिर मीडिया में हमेशा बनाए। उससे होता है क्या है कि एक ब्रशअप होता रहता है आइडियाज लोगों का, वो जो है एक निखरता रहता है और आपके बारे में पहचान जो है मार्केट में बनी रहती है। कनेक्ट टू कम्युनिटी, जब हम लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं तो हम कम्युनिटी को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लाइक लोकल फेस्टिवल्स, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, छठ है, हमारे झारखंड में कर्मा पूजा होता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो जितने भी मास कनेक्टिंग फेस्टिवल्स थे और इस तरह के इवेंट्स है, वहां पे हम कोशिश करते हैं हम लोग वहां पे पार्टिसिपेट करें और हम लोग खुद भी एक मास कनेक्टिंग कुछ इवेंट जो है अपने डेयरी के लेवल पे जो है करते रहते हैं। लाइक दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता इस बार हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया, विच हैज गिवन अस अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स। क्या कि एक प्लेटफॉर्म पे सभी जमा हो गए, जितने पार्टिसिपेटिंग ग्रुप थे एज ग्रुप के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर दिया और उनके बीच में कंपटीशन करवा दिया। जिसने सबसे ज्यादा दही एक पर्टिकुलर टाइम में खाया उसको हम लोगों ने गिफ्ट हैम्पर दिया और वो काफी खुश होके गए। इससे हुआ क्या, वो एंगेज हुए, कस्टमर एंगेज हुए, तो हमें क्या हो गया, हमें फायदा हुआ, हमारे ब्रांड्स एंगेज और वो छाप जो है उनके पास काफी दिन तक बनी रहेगी। लीडरशिप की बात करें तो लीडिंग एट द एज, नए डेयरी में, नए कोऑपरेटिव में यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी फॉर द ऑड काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस वेयर इन यू हैव टू परफॉर्म कम्स व्हाट में। तो इस हिसाब से जो है हमें डेली रेडी रहना पड़ता है। 24/7 हम रेडी रहते हैं और इस हिसाब से ही लीडरशिप एक्सपेक्टेड है इन पर्टिकुलर डेयरीज में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट वी डिड इन कोविड जो है सभी को एक सरप्राइज की तरह से मिला, एक बर्थडे गिफ्ट की तरह कह सकते हैं हम लोग। तो कोविड में क्या हुआ, बेसिकली हमारे पास भी ऐसे ही प्रॉब्लम आई जैसे सभी के पास आई। हम लोगों ने क्या किया, हमने वी हैव रीइन्वेंटेड द व्हील। हमने देखा हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास मैन पावर की क्या इश्यूज हैं, हमारे पास जो है रूट्स कौन कौन से जो है प्रॉफिट में चल रहे हैं, कौन से लॉसेज में चल रहे हैं, कहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को जो है हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से हमने रीथिंक किया, रीऑर्गेनाइज किया, अपने आप को रिसोर्स किया और एक्टेड वेरी फास्ट एंड फ्यूरियसली। 23 तारीख से हमारा फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ और 23 तारीख को ही दोपहर में हमारी सबसे पहली गाड़ी चली मिल्क ऑन व्हील। मिल्क ऑन व्हील थी कि डिफरेंट लोकेलिटीज, बिकॉज मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थे, तो डिफरेंट लोकेलिटीज तक जो है अब हमें दूध पहुंचाना है, मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट पहुंचाना। तो हमने काफी सारे रूट्स बनाए और जो डिस्ट्रीब्यूटर जिनके काम बंद हो गए थे, दुकानें तो खुल नहीं रही थी, उनको कहा कि भैया आप इस रूट में गाड़ी चलाओ, आप उस रूट में गाड़ी चलाओ, आपके पास स्पीकर है तो स्पीकर लगा के बात करो, जैसे बात करना है लोगों तक जाओ। और ये रूट जितने भी हमने बनाए थे सारे न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के थ्रू हमने पब्लिश किए। तो लोग जो है एक पर्टिकुलर समय पे एक पर्टिकुलर सोसाइटी में अपने जो है झोले लेके खड़े रहते थे कि हाँ अभी मेरा का मिल्क वैन आएगा तो हमें दूध और पनीर मिल जाएगा या हमें दही मिल जाएगा। इस तरह से जो है हमने उन्हें हेल्प आउट किया और हमने ट्राई किया कि जो ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट है जो कि होम डिलीवरी करती है, स्विगी एंड ग्रोस्टॉप, उनसे भी हम लोगों ने टाई अप किया। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जितने भी हमने टाई अप और जितने भी हमने ये एक्टिविटीज की, कहीं पे भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कंपनी का एक भी कॉस्ट नहीं लगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपना डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं तो रिटेलर मार्जिन जो है उनके पास रह गया, तो उन्होंने डायरेक्ट एमआरपी पे सप्लाई करना शुरू कर दिया।
तो वो जो बीच का जो मार्जिन था उसके बेसिस पे उन्होंने जो है बाकी सारे काम करने शुरू किए और उन्होंने भी गेन किया और ऑर्गेनाइजेशन भी जो है बहुत जल्दी जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको हम लोगों ने ओवरकम किया। अपॉर्चुनिटी इन स्कार्सिटी, जैसा सभी के साथ हुआ होगा, मेरे को लगता है 99% लोगों के साथ, फेडरेशन के साथ हुआ होगा कि मिल्क सरप्लस हो गया, अब क्या करें, अचानक से मार्केटिंग कम हो गई, मिल्क सरप्लस हो गया, तो वी हैव टू ऑप्शंस, हम उसको या तो कमोडिटी में कन्वर्ट करवा दे या फिर घी बना ले। तो हमने कमोडिटी में कन्वर्ट तो करवा लिया, अब इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें, क्योंकि मार्केट तो अभी भी नहीं खुला है, अभी भी दिक्कत हो रही है अपने मतलब मिल्क को जो है मार्केट में पुश करने में। तो उस समय जो है मार्केट में जो हम लोग घूम रहे थे उस समय रिसर्च किया हमने एक छोटा सा और देखा कि बहुत सारे स्वीट शॉप्स जो हैं वो बंद हैं, लोगों को मिठाई अब मिल नहीं रही है, इधर वो घर पे मिठाई बना रहे हैं या फिर जो होम डिलीवरी वाले देके जा रहे हैं उस हिसाब से, तो वो बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा था। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि चलो एक खीर मिक्स बनाते हैं। तो हम लोगों ने एक खीर मिक्स बनाया उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पे और इसको इस तरह से प्लेस किया कि जैसे 2 मिनट का नूडल तैयार होता है वैसे ही हम आपको 2 मिनट में खीर तैयार करके देंगे, विच विल टेस्ट यू हाई ऑन द टेस्ट बड, और जो कि हाइजीनिक भी है, डेयरी से बना हुआ है और आपके मिठाई का रिप्लेसमेंट भी जो है हम बना के आपको दे रहे हैं। तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया खीर मिक्स हमने जो उस समय लॉन्च किया था और इसकी सेल भी आज के डेट में काफी अच्छी चल रही है। दूसरा कुछ स्लो मूविंग हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे, जैसे आम दही था जो हमारा स्लो मूविंग था, तो उसको हमने पनीर के साथ साथ जो है क्रॉस प्रमोशन किया। क्रॉस प्रमोशन में हुआ कि 200 ग्राम पनीर के साथ हमने आम दही जो है एक कुछ दिन के लिए जो एक हफ्ते के लिए फ्री करके भेजा कुछ कस्टमर को, और उनसे जो है हुआ क्या कि हमारा आम दही उनके हाउस होल्ड में घुस गया और जो है काफी अच्छा जो है हमें ट्रैक्शन मिला सेल्स का। तो फिर लोगों का जो है आम दही के लिए भी डिमांड बढ़ने लगा, पनीर तो हमारा चल ही रहा था, आम दही स्लो मूव करा तो वो भी फास्ट मूव करने लगा। और इस लॉकडाउन में सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे प्रोडक्ट के सेल काफी बढ़े थे। रीजन ये था कि मार्केट में फ्रेश प्रोडक्ट्स मिल नहीं रहे थे। हमने भी पेड़ा, पनीर, दही, खीर मिक्स ये सब में जो है काफी अच्छा जो है ग्रो किया है। और सिंपैथेटिक टू द चैनल पार्टनर्स हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सैनिटाइजर दिया था, हैंड ग्लव्स दिया था, कैप्स दिए, बीच बीच में जाके उनके हाल समाचार पूछते रहते थे, फोन करते थे उनको जानबूझ के कि सर कैसे है, क्या है, नहीं है, मतलब हमें पता है हमें बिजनेस नहीं मिलना है, लेकिन स्वीट शॉप जितने थे, जितने भी इंपॉर्टेंट आउटलेट्स थे, उनको फोन करते थे, वीक में एक बार मैसेज करते थे, उनके हाल समाचार लेते थे। आज के डेट में दे ऑल हैव कम बैक टू अस, 90% हमारे पास आ गए हैं वापस और अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेधा मिल्क प्रोडक्ट, जैसे इम्यूनिटी की बात होती है, हम लोगों ने भी काफी इम्यूनिटी पे जो है प्रमोट किया, अपने ब्रांड को, मिल्क को प्रमोट किया इम्यूनिटी बूस्टर की तरह। हमारे प्रोडक्ट जो भी थे, घी हमने बोला आप टेस्ट करो, हल्दी दूध को हमने प्रमोट किया, तो इम्यूनिटी पे काफी फोकस करके जो है हमने भी उस समय अपने यहाँ पे प्रमोशन किए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम थैंक करना चाहेंगे अपने कंज्यूमर्स, अपने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जेएमएफ के स्टाफ और एनडीडीबी के स्टाफ, जितने भी हम लोग साथ मिलकर कर पाए उस समय, क्योंकि उस समय एक ऐसी सिचुएशन थी पैनिक टाइप की कि क्या करें क्या नहीं करें, और अचानक से सेल गिर जाना, मतलब नोबडी वाज मतलब रेडी फॉर दैट। तो उस समय हम लोगों ने गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मांगा। सेम डे हमारे जितने भी बूथ थे सभी के ऊपर हम लोगों ने डीसी से रिक्वेस्ट करके नोटिस लगवाया कि ये निर्बाध रूप से खुले रहेंगे, यहाँ पे आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की सप्लाई आपकी जारी रहेगी। तो कस्टमर कुड कम देयर एंड टेक द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम देयर। दैट हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द लॉकडाउन। उसके बाद भी जो है नेक्स्ट डे जो है हमें जितने भी व्हीकल्स थे जिनके मूवमेंट अक्रॉस द झारखंड हो रहे थे उसको हमें फ्री करना था। तो हम लोगों ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हैसल फ्री सप्लाई चेन करवाया, सो दैट कि हमारे जो है सप्लाई चेन ज्यादा ना हो। उसके बाद जो है एवरीबडी नोज वोकल फॉर लोकल इज द न्यू नॉर्मल। तो चूंकि इस पर्टिकुलर स्टेट में हमसे लोकल डेयरी इंडस्ट्री में कोई है नहीं, so we are very vocal about that. We went to all the nooks and corners of the market and all the consumers and we informed them कि हमारा काम जो है, झारखंड सिर्फ एक मार्केट नहीं है बाकी डेयरियों की तरह, हमारी एक कर्म भूमि है। हम जो है यहाँ के सीमांत जो किसान हैं उनकी जीविका उठाने के लिए, उनकी सोशो इकोनॉमिक लाइफ को अच्छे बेहतर करने के लिए एक नई इंडस्ट्री को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि व्यवसाय बढ़ेगा, हमारा स्टेट जो है समृद्ध होगा, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सो जस्ट कम अलोंग विथ अस एंड हेल्प अस टू गेट अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन। सो लोगों ने हाथों हाथ लिया और काफी अच्छी कवरेजेस भी हमारे न्यूज़पेपर में, एफएम रेडियो में
और बहुत सारे जगह पे जो है हुए, जो कि हमें काफी मतलब आज तक जो है वो हमें बेनिफिट कर रहा है। लॉकडाउन के समय में हमने काफी रूट्स को रीऑर्गेनाइज किया, तो ऑब्वियसली हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्टर्ब हुए, हमारे कुछ रिटेलर डिस्टर्ब हुए, तो उनको हम लोगों ने रीऑर्गेनाइज किया और रिटेल नेटवर्क हमारा बढ़ा ही, उस समय घटा नहीं। कुछ दिनों के लिए वो बैठ भले गए थे, लेकिन फिर अचानक कहते हैं ना बाउंस बैक करके हमारे पास आए। और कंपटीशन जो थे यहाँ पे, जो अर्स्टवाइल नंबर 2 कंपटीशन थे, आज के डेट में दे आर on the verge of winding up from Jharkhand. We have literally killed them, and lot many other competitors are there who are very small scale जिनका था operation. They are on the verge of wrapping it up. Better interdepartmental coordination हमारे पास था। जब कोविड हुआ तो एवरी डिपार्टमेंट हेड, एवरी डिपार्टमेंट वर चिप्ड इन। और जो पहले हम लोग करते थे, चलो पहले एक रूटीन वे में करते, लेकिन अब जो है डेली करना पड़ता था। तो एक वेल कनेक्टेड इंटर डिपार्टमेंट जो हमारा जो ये था, ये काफी बड़ा स्ट्रेंथ बन के हमारे सामने आया, जो कि हमें बल दिया मार्केट में परफॉर्म करने का। चलो कुछ भी दिक्कत है तो पीछे से है, मैनेजमेंट पूरा है सपोर्ट करने के लिए, एंड वी वेंट ऑल आउट इन द मार्केट एंड डिड द थिंग्स। तो ये हमारे साथ काफी पॉजिटिव हुआ। ये हमारे कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो हमने सोचा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो तो काफी अच्छा रहेगा। ये घर पे रहे, सुरक्षित रहे। सैल्यूट टू द फ्रंट लाइनर्स। मेरा फ्रंट लाइनर्स हमारे सेल्स की टीम है जो काम कर रही है। गोल्डन मिल्क को हमने प्रमोट किया। ये सेफ फॉर कंजम्पशन डेयरी का जैसे हमने सभी किया होगा, हमने भी किया था। यहाँ पे गणेश चतुर्थी बीच में आए, उसको भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया अपने अंदाज में। ये 2 गज की दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया। गर्मी थी तो कुछ प्रोडक्ट के प्रमोशन भी साथ में चल रहे थे। और आत्मनिर्भरता के जो हम लोग का जो बेसिक अपना ये है, उसको भी हम लोगों ने काफी अच्छे से प्रमोट किया ग्रामीण लेवल तक। ये हमारे कोरोना वॉरियर्स है, ये बेसिकली मेडिकल स्टाफ है जो कि कोरोना के समय जो है डे इन एंड डे आउट जो है हेल्प आउट कर रहे थे हमारे लोगों को ठीक होने में। तो वहां पे हम लोगों ने मिल्क के सैंपल्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए। ये ड्राउन टोडन सोसाइटी के जो लोएस्ट स्ट्रेटा होते हैं, बच्चे भूखे प्यासे रहते थे, भिखारी थे, बहुत सारे लोग थे, तो उनमें हम लोगों ने दूध डिस्ट्रीब्यूट किया सो दैट कि दे शुड बी फेड प्रॉपरली। इस तरह के मुहिम हमने चलाए हैं यहाँ पे। ये हमारे कंटेनमेंट जोन के अंदर का फोटो है, जहाँ पे जो है ये किट पहन के ये बंदा जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का है, वो अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एंड विद द कमेंट ऑफ डीसी हमारे साथ में ही उन्होंने मतलब दे हैव जॉइंड हैंड्स फ्रॉम मेधा टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन द कंटेनमेंट जोन। तो वो हमने किया था, तो उन्होंने काफी अप्रिशिएट भी किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो कहते हैं ना कि जब आपदा आती है तब लोग जो है नए नए चीजों के बारे में सोचते हैं कैसे निकले इससे। तो उसी का एक जो है ये एग्जांपल है खीर मिक्स। और आज के डेट में आप लोगों के आशीर्वाद से कंज्यूमर का जो है उस हिसाब से काफी अच्छा हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है। हाइजीनिक है, कैरी कर सकते हैं, पैकिंग बहुत अच्छी है और स्वाद भी बहुत बढ़िया है। एक न्यू काइंड ऑफ जो है कंज्यूमर सेगमेंट जो है वो हमें इसके थ्रू मिल रहा है, जो कि हम कुछ दिन के बाद और एक्सपीरियंस करके आपको बहुत क्लियरली इसके बारे में बताएंगे। ये नॉर्मल ट्रायल परचेज एक्टिविटी जो कर रहे थे हम लोग, वो है खीर मिक्स का डिफरेंट लोकेशंस पे वन ऑफ द पिक्चर। ये मिल्क ऑन व्हील जो हमने शुरू किया था, तो उसके इस तरह से टाइमिंग्स हमने डिफरेंट सोसाइटीज के जो है मार्क किए हुए थे, रूट्स बनाए थे। उस हिसाब से ये डिफरेंट सोसाइटीज में वैन मूव कर रही है और वहाँ पे जो है लोगों को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा रही है। ये हमने ग्रो स्टॉप और स्विगी से जो टाइप किया था होम डिलीवरी का, उसके प्रमोशन हमारे वेबसाइट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू जो है हमने किया था, उसका एक छोटा सा ये पिक्चर है। नेक्स्ट स्लाइड। वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी बिजनेस। आज की डेट में भी झारखंड में जो है हम अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे और इस पर्टिकुलर मुहिम को आगे लेके जाएंगे काफी दूर तक। ये लोकल कनेक्ट, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, खीर मिक्स को जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खीर मिक्स जो है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल काउंटर्स पे जाके ट्राई करते रहते हैं। इस बार हमने क्या किया कि हनुमान जी की एक मंदिर हमने पकड़ी दुर्वा में, जहाँ पे ट्यूसडे और सैटरडे को भोग लगता है। तो हमने पुजारी और उसके जो मैनेजमेंट है उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया ये भी शुद्ध है, देसी है और इसमें दूध ही मिला हुआ, दूध और चीनी है, तो व्हाई कांट वी ट्राई दिस एज ए प्रसादम ओवर देयर। उन्होंने अलाउ किया और आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अप्रिशिएट किए। और इससे हुआ क्या कि खीर मिक्स हमारा उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में काफी फेमस हो गया। वहां पे लगभग नहीं भी तो कम से कम 500 से 1000 जो है लोग आते हैं
डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे, उन्होंने इसको टेस्ट किया और काफी अच्छा फीडबैक मिला हमें। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लोकल कनेक्ट। ये हमने दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता लास्ट ईयर किया था, काफी हिट प्रोग्राम रहा, बहुत ही अच्छा रहा। एंड वन ऑफ द गुड प्रैक्टिसेस दैट वी हैव अडॉप्टेड, जिसमें कंज्यूमर को हम लोग एंगेज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, एंड बोथ ऑफ अस हैव एंजॉयड अ लॉट। ये मकर संक्रांति पे हमने किया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एजुकेशनल विजिट्स जो हमने बात किए थे प्रीवियस स्लाइड्स में, ये स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के बच्चे, मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स, कॉलेज के बाकी लोग, इस तरह से हम लोग उनको विजिट करवाते हैं, प्लांट विजिट। छठ पूजा के समय डिफरेंट छठ घाट जो होते हैं, छठ इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल इन बिहार, झारखंड एंड यूपी। तो यहाँ पे जितने भी छठ घाट्स थे, वहां पे हम लोग क्या किया कि मेधा का कियोस्क लगाया, स्टॉल लगाया, मेधा ब्रांडेड कप में जितने भी छठ व्रती थे, नॉर्मली शाम के समय तो वो नहीं, शाम के समय जो अटेंड करते हो, फिर सुबह के समय भी जो है बहुत सारे लोग जब पूजा खत्म कर लेते हैं तो वो टेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं कम से कम रिफ्रेश होने के लिए। तो ये जो है हम लोगों ने हर ईयर जो है करना शुरू किया लास्ट 2 ईयर्स से। तो काफी अच्छा, ये लोकल कनेक्ट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। और इवन इसमें मास बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं और लोग आपके ब्रांड के बारे में, आपके टी स्टॉल पे इतनी भीड़ लग जाती है कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव वी डिड हियर इन JMF ड्यूरिंग छठ पूजा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे कवरेजेस जो है हमने कुछ दिखाने की कोशिश की है कि किसी भी रीजन से कोई भी अच्छे ओकेजन पे और पॉजिटिव रीजन, यू हैव टू बी इन द न्यूज, यू हैव टू बी इन द न्यूज़पेपर और एनी अदर मीडिया। उससे होता है क्या है कि आपका ब्रांड जो है ब्रश अप होता रहता है, आपको रेफरेंस हमेशा जो है लोग रेफर करते रहते हैं और आप जो है हमेशा उनके टॉप ऑफ द माइंड में जो है वो राज करते, मतलब एक तरह से आप रहते हैं उनके यहाँ प्रेजेंट। फाइनली इसको एक मैं केस स्टडी आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे झारखंड में तो मैक्सिमम जो सिटी है Tier 2 सिटीज हैं, Tier 2 सिटी में भी एक Tier 2 सिटी करके आते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट है ऐसे जो कि काफी इंटीरियर में है, लाइक गुमला ऐसा ही एक डिस्ट्रिक्ट है, सिमडेगा, गुमला, ये सब काफी इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है। तो जब मार्केट एक्सपेंशन के क्रम में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि गुमला जो है एक स्ट्रेटेजिकली ऐसा लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट है जिससे जो है 2 स्टेट बहुत ही करीब में है और बॉर्डर एरिया है, तो फ्यूचर के लिए जो है हमारे अच्छे रहेंगे। और दूसरा है कि गुमला वाले रूट में जब हम जाते हैं तो वहां पे स्वीट शॉप्स काफी है, स्वीट से दुकान काफी है। तो हमारे छेना मिल्क और खोआ मिल्क जो है, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल पैक हैं SM और TM के, तो उसकी खपत वहां पे काफी थी। तो हमने जब रिसर्च किया तो पता चला काफी खपत होगी। तो वहां पे गया, तो जब वो मार्केट गए तो वहां पे जो हमारे नंबर 1 प्लेयर थे, दे वर एंजॉइंग अराउंड 50% मार्केट शेयर। उसके बाद सब लोकल डेयरी थे, प्राइवेट डेयरीज थे, वो लोग ऑपरेट कर रहे थे वहां पे। तो वहां पे हमने एक मार्केट आइडेंटिफाई किया, वो रूरल मार्केट था। उसके बाद फिर उसका हमारे टारगेट जो वहां पे थे वो हमारे स्वीट शॉप थे, टी वेंडर्स थे और जो है रिटेलर्स थे, जो छोटे मोटे जो रिटेलर्स, बिकॉज वो पर्टिकुलर एरिया जो है ना काफी मिल्क रिच एरिया है। तो वहां पे दूध ऐसे नॉर्मल यूसेज के लिए लोग नहीं खरीदते, बिकॉज उनके घर में गायें हैं, उनके पास दूध अवेलेबल रहता है आसानी से। तो वो बेसिकली क्या करेंगे कि कंसिस्टेंट मिठाई बनाते हैं, तो कंसिस्टेंसी के लिए उनको जो है डेयरी से एक दूध चाहिए और दूसरा प्रोडक्ट बेचते हैं वो वहाँ पे। तो फिर इस तरह से जो है हम लोगों ने वहाँ पे मूव किया 2 साल पहले। और उसके बाद जब वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे जब लोकल मार्केट, आप छोटे मार्केट में जाते हो तो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है एक मजबूत पार्टी को ढूंढना, डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना, क्योंकि पैसे वहाँ पे सभी के पास नहीं होते हैं, कुछ लोगों के पास होते हैं, तो वो ढूंढने के लिए। तो फॉर्चुनेटली हमें वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर मिला। उस स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम मार्केट में पेनिट्रेट किए। वो एक्चुअली एक स्वीट शॉप वाला ही है, लेकिन वो काफी पुराना है एंड दे हैव गॉट गुड मनी, तो वो इन्वेस्ट भी मार्केट में जो है अच्छे से करता है और उस हिसाब से जो है मार्केट को खड़े करने में उसने काफी हेल्प की हमारी। हम भी जो है मार्केट में जाके जो है वहां पे काफी सारे ट्रायल परचेजेस स्कीम्स जो हमारे आते थे वो इम्प्लीमेंट किए, शॉप बोर्ड्स, बैनर, पोस्टर, जो भी होते हैं मार्केटिंग के बेसिक्स, उन सारों पे काम किया। और आज के डेट में वहां पे हमारा जो है शेयर जो है अप्रोक्सीमेटली, आप मान के चलो, उनका 2500 लीटर बिकता था नंबर 1 प्लेयर का, आज के डेट में हम 2000 लीटर पे पहुंच गए हैं और उस टोटल मार्केट की सेल जो है 6000 लीटर है अभी। और काफी अच्छा हमें ग्रोथ दिया एक पर्टिकुलर मार्केट से, जहां पे हमने 2 साल पहले शुरू किया था, आज 2000 का मार्केट वो खड़ा हो गया एक पर्टिकुलर रूट। सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। और हमें लगता है कि इसी फॉर्मेट पे जो है एक्सपेंशन, जैसे हम लोग मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो हमें डिस्क्रीट वे में नहीं, कंटिन्यूअस वे में
आज रांची किया तो कल उसके बगल के डिस्ट्रिक्ट या कल उसके बगल के एरिया, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और आपको रिजल्ट भी देता है, आपके रिसोर्सेज भी वहां पहुंच सकते हैं, आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ये था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कैन वी गो टू एंड फाइनली हियर कम्स द गुड न्यूज, JMF has recovered its actual sale on 24th of June. Now the new normal is growth continues. 2 महीने में हमने रिकवर किया अपने खोए हुए सेल को, काफी फास्ट रिकवर किया, and if I'm not wrong, so we were one of the fastest dairy in India who recovered within 2 months. Thank you. सर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। मेरे को एक प्रश्न पूछना था। Yes sir. सबसे कॉस्ट इफेक्टिव व्हाट यू कॉल कम्युनिकेशन हमारे डेयरी सेक्टर के लिए वो कौन सा रहेगा? सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो हमने यहाँ पे किया है, दैट इज वॉल पेंटिंग. वॉल पेंटिंग वॉल पेंटिंग, यस, इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम फॉर डेयरी सेक्टर या फिर किसी भी इस तरह की संस्था के लिए. Sir, can I add something, sir? Yes. Hello. yes, I am SR Misra from Baroni Milk Union. Yes sir. इन्होंने पूछा कि व्हाट इज द चीपेस्ट, जो कैंपेन के लिए, जो एडवर्टीजमेंट के लिए, व्हाट इज द चीपेस्ट सोर्स है. एम आई राइट सर? तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने इतने दिनों में सीखा है मार्केटिंग में, आप जो करना चाहते हैं उसको, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, वेदर यू वांट टू फॉर ब्रांडिंग या आप कंज्यूमर अवेयरनेस करना चाहते हैं, और आपका टारगेट ग्रुप कौन है, किसको आप ये मैसेज देना चाहते हैं, आई थिंक दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू डिसाइड द जो किस मीडिया में आप करना चाहते हैं, वॉल पेंटिंग करना चाहते हैं या मीडिया के थ्रू करना चाहते हैं या पेपर के थ्रू करना चाहते हैं. तो सबसे पहले ये मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आप कंज्यूमर को क्या बताना चाहते हैं, आप एडवर्टीजमेंट से क्या हासिल करना चाहते हैं, देन यू हैव टू डिसाइड कि किस तरह से आपको एडवर्टीजमेंट करना है. Sorry. Thank you, sir. That I wanted to add. thank you sir. So that was MD of Baroni Milk Union, Bihar. Right, sir. Right. Good evening, everyone. So, on behalf of NDDB, let me take this opportunity to thank Sri Amrdesh Kumar, Group Head Marketing, Sales and Marketing, JMF. And please note down the email ID for any feedback. It is marketing@nddb.co. Thank you, everyone, once again.